Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. So students, this is a maths period in class 4. It's your lecture number 32. As we have started unit number 3 and it is fractions. In our previous lecture, students, we learned about how to make denominators same and comparing fractions. So today is page number 59 and it's question number 8, part E, F and G. This is your copy work. So students, write the following fractions in ascending order. As in our previous lecture, students, I told you that we cannot compare fractions, we cannot add or subtract fractions until their denominators are same. जब तक उनके डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस के सेम नहीं हम कर लेते तब तक हम फ्रैक्शंस को ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, here you can see we have three fractions, 3/4, 5/6, 3/8 and all the denominators are different. So to compare them and to write them in ascending order, we have to first make them same. We have to make denominators same. As you all know students, what is ascending order? Ascending order is from smallest to greatest. So first of all you have to take LCM of denominators. So we will take LCM of denominators and the LCM is 2 into 2 into 2 into 3 is equal to 24. Now we will make the denominators same first. Here you can see we have 4. We have 4 in denominator, 6 in denominator and 8 in denominator. 3 different values. Now we will multiply 4 by 6. So 6 4s are 24 and 6 3s are 18. Second fraction is 5/6. So 6 multiplied by 4 we get 24 and you all know students, हम जिस वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं हम उसी वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं. Okay students, now 5 4s are 20 and 6 4s are 24. The third fraction is 3/8 and multiplying 8 by 3 we will get 24 and 3 3s are 9. Now we have 18/24, 20/24 and 9/24. Here we have these three fractions. अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम सबसे पहले राइट डाउन करते हैं. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? 9/24. सो वी विल राइट फर्स्ट 9/24, देन 18/24 एंड देन 20/24. क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हमने आंसर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली है. नाउ वी हैव टू सी the answer with question. Okay, 9/24 की रियल फ्रैक्शन क्वेश्चन में क्या थी? 3/8. सो वी विल राइट हियर 3/8. 9/24 की रियल फ्रैक्शन 3/8 थी तो हमने 3/8 राइट डाउन कर दी. सेकेंड 18/24 है. यू कैन सी हेयर 18/24 की क्वेश्चन में रियल फ्रैक्शन थी 3/4. सो हमने 3/4 लिख दिया यहाँ पे. और 20/24 की रियल फ्रैक्शन क्या थी? 20/24 की रियल फ्रैक्शन क्वेश्चन में थी 5/6. तो हमने लास्ट में 5/6 लिख दिया. हमने मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज कर दिए वैल्यूज़ को. आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बहुत ज़्यादा
इजी लगा होगा कि ये, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम करना प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। तो इसमें भी आपने पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने उन वैल्यूज़ को देखना है कि इसकी क्वेश्चन में रियल वैल्यूज़ मींस क्वेश्चन में रियल फ्रैक्शंस क्या थी, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना। Now students, I am going to tell you about types of fractions. Okay, the first is unit fractions. A fraction with the numerator 1 is known as a unit fraction. Means जिसका numerator 1 होगा तो regardless of denominator कुछ भी हो, numerator 1 होगा तो वो unit fractions है. Like you can see here 1/4, 1/5 and 1/100. Now next is proper fractions. Fractions whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. For example, 1/4, 2/5 and 7/8. Here you can see all the numerators are less than its denominator. 1 is less than 4, 2 is less than 5, 7 is less than 8. So these are proper fractions. Next is improper fractions. Fractions whose numerator is equal to or greater than its denominator. वो फ्रैक्शंस इनका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, मीन्स सेम वैल्यूज़ होंगी, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा. लाइक यू कैन सी हियर 4/4 मीन्स इक्वल वैल्यूज, सेम वैल्यूज. देन 5/4 एंड 8/4 you can see the numerator is greater. 5 is greater than 4 and 8 is greater than 3. Clear students? Next is mixed fractions. A fraction is made up of a whole number and a proper fractions. Whole means one complete. Here you can see in the shapes here. This is one whole, means all shape is colored. No part in this shape is uncolored. Okay. तो ये हो गया होल. इसमें टोटल कितने होल्स हैं स्टूडेंट्स? 2 होल्स हैं. 1 and 1 मीन्स 2 होल. ठीक है. और इसमें 2 कलर्ड हैं और टोटल 4 पार्ट्स हैं. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनती है? दिस 2 इज़ शोइंग होल, मीन्स देयर आर 2 कंप्लीट शेप्स, 2 होल शेप्स, पूरी शेप्स हैं. देयर इज़ नो एनी पार्ट विच इज़ अनफिल्ड. ठीक है. और ये जो फ्रैक्शन शो हो रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसको. ओके. वो कैसे शो कर रही है? इसमें बेटा कितने कलर्ड पार्ट्स हैं? 2 कलर्ड पार्ट्स हैं. और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4. तो ये फ्रैक्शन है 2/4. जब हम इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मीन्स 1/4 नहीं 1/2. क्लियर? So students, this is a mixed fraction. A mixed fraction is made up of a whole, means this 2 is showing whole, and a proper fraction. This is fraction, proper fraction, whose numerator is smaller than denominator. Clear? Now students, come to the bookwork, and it is page number 63, question number 4 complete. Express the mixed numbers as improper fractions. Clear? अब हमने कैसे करना है? हमने देखना है पहले होल को हम साइड पे लिखते हैं. अब इस शेप में स्टूडेंट्स 1 होल है, मींस 1 शेप है जो कम्प्लीटली कलर्ड है, तो हम साइड पे लिख देंगे 1 होल मींस 1. और फ्रैक्शन अब देखनी है हमने. फ्रैक्शन में 2 कलर्ड पार्ट्स हैं, 1 2. दिस इज़ 2 ऊपर. और टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो नीचे आ जाएगा 6. इट्स इज़ 1 होल 2/6. इट इज़ 1 होल 2/6. क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको आगे फर्दर भी कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं. आप इसको लिख सकते हैं 1 होल 2 की जब कटिंग करेंगे 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आ जाएगा 1 होल 1/3. 1 होल 1/3. तो आप दोनों आंसर्स लिख सकते हैं. दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन जो है वो
ठीक है, आप 1/2/6 लिखोगे वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप 1/1/3 भी आगे फर्दर कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। मींस आपके कोई चांस नहीं कि आपके कोई मार्क्स वगैरह या पेपर्स में भी इस तरह अटैम्प्ट करते हो तो डिडक्शन होगी। सो स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी पार्ट आप इसके खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 6, चेंज दीज मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So students, as I told you that improper fraction are those fractions whose numerator is equal to or greater than its denominator। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 3/1/4। हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना, उसका फॉर्मेट ये है कि हमने पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 3s are 12। अब जो आंसर आया 12 उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई किया। 4 3s are 12 and 12 plus 1 we will get 13। Here we have 13/4। So student, it is improper fraction. Now it has been changed into improper fraction. As improper fraction is those fractions in which numerator is greater than denominator and 13 is greater than 4, so it is improper fraction। Clear? बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इट्स वेरी इजी। First you have to multiply the denominator with whole and then add numerator in the answer. We will get after multiplying the denominator with the whole number. Okay. Now it's page number 63, question number 7, change these into mixed number। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं उस फ्रैक्शन को। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। हेयर वी हैव 15/4, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 15 and 4 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 15 minus 12 we will get 3। Now students, जो हमारा रिमाइंडर होगा हम उसको न्यूमरेटर की जगह लिखते हैं 3 ऊपर, जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको हम होल पे लिखते हैं साइड पे। 3 ही हमारा आ जाएगा एज अ होल, 3 होल 3/4। और 4 जो है हमारा डिवाइज़र जो है वो एज अ डिनोमिनेटर हम राइट डाउन करते हैं। 3 होल 3/4 ये हमारा मिक्स्ड नंबर में चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, क्लियर? So students, for today our maths diary is page number 59, question number 8 AB on copy. Do you work neatly with neat handwriting? Okay students, so take care and Allah Hafiz.